Hello today. Hello. So today we are going to start with the next lectures of the chapter Chemical Reaction and Equation, class 10, Science. So today we are going to study about the types of chemical reaction. So which is the next topic of your book. So types of chemical reactions. So mainly there is 5 types of chemical reactions, means chemical types of chemical reactions. Firstly, there is your combination reactions. Combination reaction. Combination reaction. Number second is your decomposition reaction. Third is your displacement reaction. And fourth is your double displacement reaction. And fifth, that is your oxidation and reduction reaction. Oxidation This is the 5 main type of reaction that we are going to study in the chapter, and let us understand the particular reaction very nicely, as deep way is possible. So firstly, what is combination reactions? So the name itself indicates that a combination reaction means what? Combine. When 2 or more reactants combine to form a single product, that's called the combination reaction. I hope you can feel, you can sense it. दो मिलके एक बनता है, combination reaction, that is called combination reactions. I hope it is clear. The next reaction is called decomposition reactions. Means what happened? Decompose. What does the name indicates here? Decompose, बिखर जाना, टूट जाना, to split into various parts. Means when the single reactant split or break down to 2 or more products, that is called decomposition reactions. I hope it is clear, you can catch it what I am saying. I will give a definition for that also, as well as the example also. Just make you feel, let me make you feel the terms about these terms. Third is your displacement reactions. When displace means what? To take the place of someone. To displace, kicking someone, hey, get out, let me take your place, man. Means to displace someone's place from its solved solutions is called displacement reactions. As a matter of example, let me give an example. Suppose let me consider A, B plus C. If I say A is more stronger than B, A is more stronger than B, so obviously, for example, I can just give an example. So it's AB plus C. AB plus C. Consider the C is more stronger than your A. Obviously, the C will take its partners. It will become CA and B will become singly. I hope you can catch it. Let me explain this more nicely to make you really feel what does it means. Here, let me make you with a practical example. Suppose A is AB are boyfriend girlfriend, okay, and C is one more boy. So consider this. A is not so strong. It's a little poor guy, doesn't have a bike, kind of car. But this C is very rich and quite stable. He has car, bike, everything. So obviously, with whom the B will be more stable in his life? So obviously the C will try to snatch his girlfriend. So how it becomes? It displaces its place. It becomes CB plus A and
Devdas, and A become Devdas here. A becomes singly in his form. So A is no more able to make a pair. So it is called the displacement reaction, means where the more reactive metal displace the less reactive metal in its salt solution. There's various examples I will be giving. Just as a short demonstration of the types of reaction that I'm giving this. Now the second last, there is double displacement reactions. What does it means? Means here also the word displacement is there. Then obviously something like displacement will be taking place obviously here. But double means what? Means there is two double exchange of their ions, double exchange of their partners takes place. For example, as a matter of example, let me give you. Suppose AB plus CD. So AB, so AB are whatever, they are couples, and CD are couples. They're very happy with their formality. So, my dear, they decided, let me change our partner. We are so bored by having the same partner for a long period of time. Examples, again a matter of example. So what they did, they exchanged the partners. So what did the A took D, the A took D, whatever. Suppose A took clear what I'm saying here. Suppose A took D, A D, and C took B, C B. So there is a double exchange of the partners. The partners are doubly exchanged. So I can say this type of reaction is called what? Double displacement reactions. I will be giving the particular examples with definition. No need to worry about this thing. Okay. Now the next point comes, that is oxidation and reduction reactions. It is one of the most interesting, reactions. Many questions comes from this topic. Now let me make you clear this concept. Oxidations and reduction reaction. Firstly, what is the meaning of oxidations? The name indicates. Oxidation means what? Oxidation means what? Addition of oxygens and removal of hydrogen. But a reduction means what? The completely reverse case of oxidations. Reduction means removal of removal of oxygen but addition of hydrogens. I hope it is clear. But in the case of oxidation, what we have learned in here, addition of oxygen and removal of hydrogen takes place. While in reduction what takes place? Addition of hydrogen and removal of oxygen takes place. And such reaction where you can see the exceptions or the additions of oxygens or removal of hydrogen takes place. Such kind of reactions are called as oxidation and reduction reactions. There's so many examples are there. Enormous number of examples are there. So we like to clear it up very soon. For the basic understanding, let me give an example. Suppose consider example of Cu, copper plus oxygen. What it becomes? It becomes copper oxide, CuO. So it is a very good example of oxidation and reduction reactions, in which you can see in this reaction the addition of oxygens occurs. So we can clearly state it as a oxidation and reduction reaction. I hope it is clear very well. Okay, fine. We're going with the topic. First topic is a combination reaction. Let's write the proper definitions and clearance. So here is the first reaction goes. Combination reaction. So very clear definitions mentioned here. The reaction in which two or more substances combine to form a single substance are called combination reactions. Very simple words when expressed here. It's very simple. When two or more substances, those are अधिक substance, when they combine, when they form together, they form a product, single product. It's called what? Combination reactions. For example, you can see enormous numbers of examples are there. I just have given you a few examples for better understanding. So magnesium plus oxygens give what you get is magnesium oxide. Example, we can go to further example. That is hydrogen plus oxygens give you means whatever is water, hydrogen oxide. Next to calcium oxide is also called as quicklime. Quicklime when added with water, it gives you what? Calcium hydroxide. You can give some more examples like carbon plus oxygens. What you get in replacement is carbon dioxide. There's enormous numbers of examples are there.
Okay, I hope the basic formulation, the definitions and the examples is very clear. Just try to remember the examples and definitions. It's going to be very important. Come on, now let us jump to the next reaction, that is your displacement reaction. So here's the next questions. So here's the next definitions. As the combination decomposition reactions, the reaction in which the compound split into two or more similar substances are known as decomposition reaction. Decomposition reactions. So for example, let me give an example. It's very simple definition, means same in the opposite case of a combination reactions. Means what does the combination says? When two reactants combine to form a single product, it is called combination reactions. But the case is totally reverse in the case of decomposition reaction. Means in here, the one reactant it split, it took one single reactant, it split to form two or more product, is called decomposition reactions. I hope it is very clear what I have discussed here. So let me give an example. Suppose consider calcium carbonate, CO3 2, calcium carbonate. Example. So let me give an example. Calcium carbonate. When calcium carbonate is heated, is provided heat, it converted into calcium oxide plus carbon dioxide. It's very simple. Look, you can see from this expressions, from these chemical reactions. Calcium carbonate is a single reactant. It split due to heat. Here is the provided sufficient necessary condition is given here. Due to this heat, the calcium carbonate is split into two byproducts or two products. That is what? Calcium oxide plus carbon dioxide. So this is what is called decomposition reactions. Means clear? I hope clear. And this calcium carbonate, it has one more common name, that is called slake lime. SLAKED, slake lime. And this calcium oxide, it is called quicklime, QIC, quicklime. I hope it is clear. Slake lime and quicklime. So let me teach you this one. So this calcium carbonate. So there is one interesting fact of calcium oxide. Calcium oxide, commonly we call it as a quicklime. Quicklime means limestone. No, this is lime actually. The person who used tobacco and even with pan tamul, they uses this one lime. When this quicklime is added with water, there is an heat evolved through that. You can also do it practically. We take some limestone and just drop in water. You can see heat evolves from there. The heat develops there, and this type of reaction is called exothermic reaction. The heat is produces. I will teaching you the difference between the exothermic and endothermic reactions. So here, remember this: when quicklime is added with water, it forms slake lime. It becomes calcium hydroxide. The chemical name is calcium hydroxide. While the commonly we call it as a slake lime, SLAKED, slake lime. And this is the lime that we use for whitewashing the walls of the buildings or the paka houses. This is the slake lime or the liquid slime that we also people uses with tobacco and pan tamul. And this is what it is called, the slake lime or calcium hydroxide. I remember. And this, when this calcium hydroxide is put in the wall, it become white. How? It converted into calcium carbonate. Because when you put in the wall, what happened? The wall been soaked by air, and we know that in air molecules lots of different type of gases are present. So there is also a component of air, that is carbon dioxide. This carbon dioxide, when it attach or when it react with the calcium hydroxide, it forms calcium carbonate.
which is white in appearance. Lastly, the white appears white due to formation of this, and it is also called marbles. It is also called marble. I hope it is clear. Thermal decomposition reaction. Thermal बहुत अच्छा टॉपिक है. Thermal, the thermometer. Thermo का मतलब होता है गर्म, है कि नहीं? पता है, क्लियर हो गया ना? थर्मोडायनेमिक मिलेगा आपको क्लास 11 में, साइंस में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में. थर्मो का मतलब हीट और मीटर मतलब हीट को मापने का यंत्र, है कि नहीं, थर्मोमीटर. तो थर्मल डिकम्पोजिशन मीनिंग से मतलब नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स जो डिकम्पोजिशन गर्म से हो रहा है, हीट की वजह से हो रहा है. मीन्स क्लियर, जो डिकम्पोजिशन हीट का मौजूदगी से संभव है उसे क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन. इतना ही चीज़ है, बस वेरी सिंपल. आप जो रिएक्शन अभी तक पढ़ा था ना वो सब क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन. बिकॉज यहाँ पे हीट का इन्वॉल्व हो रहा है, हीट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है. जैसे कि ये इसका नाम क्या था, पोटेशियम क्या था, क्रोमेट. पोटेशियम क्रोमेट. व्हेन पोटेशियम क्रोमेट इज हीटेड, व्हाट इज प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट, क्या मिलता है उससे, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस. ये तो था ना. तो इसमें क्या हो रहा है, हीट का इन्वॉल्व हो रहा है. तो ये भी क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन. आपको एग्जाम में ऐसा आ सकता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन. तो आप दे सकते हैं इसको भी, या फिर आप इसको ये भी दिखाया था आपको ना, फेरिक सल्फाइड व्हेन इट इज हीटेड इट प्रोड्यूस व्हाट, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड. दिस आर टू पॉइजनस गैसेस, है कि नहीं. तो ये भी क्या, हीट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है. ड्यू टू दिस हीट ओनली ये क्या हो रहा है, ये स्प्लिट हो रहा है. दो तीन सब्सटेंस में या फिर प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, स्प्लिट हो जा रहा है. समझ में आ रहा है कि नहीं बात जो. तो बहुत ध्यान देना. और बोले सा कलर क्या था, कल उस दिन बोला था मैंने, व्हाट इज द कलर ऑफ फेरिक सल्फेट, ग्रीन कलर. क्या नाम है, ग्रीन कलर. तो इसका ऐसे भी आ सकता है, कलर से भी क्वेश्चन आ सकता है. ग्रीन हम 12 बोल रहे हैं हम, ग्रीन कलर. और ये क्या कलर क्या है, ब्राउन BROW एंड ब्राउन. तो कल बोला था हम कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं. व्हेन ए ग्रीन सब्सटेंस इज हीटेड इट प्रोड्यूस ए ब्राउन सब्सटेंस अलोंग विद 2 डिफरेंट गैसेस. तो वो सब्सटेंस क्या है, ग्रीन सब्सटेंस. दैट ग्रीन सब्सटेंस इज फेरिक सल्फेट एंड दैट ब्राउन सब्सटेंस इज व्हाट, फेरिक ऑक्साइड along with 2 gases, 2 poisonous gases, sulfur dioxide and sulfur trioxide. clear. now last one, this one, ये भी एक तरह का क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन है. जिसमें लीड नाइट्राइड व्हेन इट इज हीटेड इट प्रोड्यूस व्हाट, लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन. ये भी दो डबल गैसेस प्रोड्यूसेस. तो इसका कलर क्या था, ये था कलरलेस. ये ऐसा एक बढ़िया क्वेश्चन आता है, कलर लेस सॉल्यूशन ये है. और ये क्या है, इसका कलर क्या था, येलो. इसका येलो था, येलो कलर जो हम पहना है कि नहीं. और ये क्या, नाइट्रोजन कलर क्या था, ब्राउन फ्यूम्स. ये याद रखना हमेशा कि विच गैस कंसिस्ट ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. क्लियर हो गया ना. अभी देखो कलरलेस सॉल्यूशन, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि व्हेन ए कलरलेस सॉल्यूशन इज हीटेड इट प्रोड्यूस ए येलो सब्सटेंस अलोंग विद 2 डिफरेंट गैसेस ना, व्हिच ऑफ वन गैसेस इज ऑफ या आपका ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन कलर बोलेगा आपको. तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि यहाँ पे भी 2 गैस है, यहाँ पे भी 2 गैस है, लेकिन अंतर क्या है गैस में, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है. समझ में आ रहा है कि नहीं. तो कलर का ऊपर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं. 12 बोल रहे, लास्ट टाइम आया था ऐसा टाइप का क्वेश्चन. ठीक है. व्हेन ए कलरलेस सॉल्यूशन हीटेड, व्हाट इज द कलरलेस सॉल्यूशन, दैट कलरलेस सॉल्यूशन इज व्हाट, लीड नाइट्राइड. ये सब सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है. ऐसा फेवरेट क्वेश्चंस एकदम फुलटा सब डायरेक्ट मतलब हिटिंग पॉइंट इसमें. आई होप इट इज क्लियर. तो थर्मल डिकम्पोजिशन भी क्लियर हो गया. मीन्स व्हाट, व्हेन ए डिकम्पोजिशन इज रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जो हीट से मतलब जैसे गर्मी से हो सक रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मल डिकम्पोजिशन. आई होप इट इज पूरा क्लियर हो गया ना. वेरी गुड डिकम्पोजिशन. इसको अच्छा से थोड़ा ध्यान देना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इलेक्ट्रोलाइसिस, देखो ये आपको क्लास 11 में मिलेगा अगर कोई साइंस में पढ़ने दिल है तो. इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट और इलेक्ट्रॉन, और लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ब्रेक. इसका मतलब क्या होता है, टू ब्रेक डाउन. मीन्स वेरी सिंपल, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच कैरीज आउट थ्रू द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो इलेक्ट्रिसिटी का मदद से किसी एक रिएक्शन को डिकम्पोजिशन किया जा रहा है. जैसे पानी को तोड़ से किया, अलग करो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हाथ से, तुम धनवान है ना, है कि नहीं, कर सके, कोई नहीं सके ना. तो इससे क्या होता है, हम लोग क्या है, सबसे पावरफुल चीज़ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है. इंटरनेट से भी जितना भी बड़ा टेक्नोलॉजी है दुनिया में, है कि नहीं, बिना इलेक्ट्रिसिटी का कुछ नहीं होगा दुनिया में. कुछ होगा, ये कैमरा बोलो, जो भी बोलो, लाइट बोलो, फैन बोलो, जो भी चीज़, लैपटॉप, इंटरनेट, दुनिया जितना ही बोलो, खाना पीना ही बंद हो जाए इलेक्ट्रिसिटी के बिना. ऐसा टाइप का हालत है अभी. समझ में आ रहा है कि ना बात जो. तो ध्यान से सुनो यहाँ पे. तो जो करंट के द्वारा, जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो ब्रेक डाउन हो रहा है,
जो डिकम्पोज हो रहा है उसे क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन हम लगा दे इसको. सो सिंपल, क्लियर हो गया ना? वही लिखा है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस. क्लियर, समझ में आया ना? जैसे कि एग्जांपल, बहुत बेसिक एग्जांपल आपके पास है, जैसे कि वाटर H2O. हम इसको साधारण से फिल्टर करके क्या करेगा? अलग फिल्टर करो, निकलेगा क्या हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग? तो नहीं कर सकते ना, जो भी करो. तो साइंटिस्ट का एक सिस्टम है क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इसको. व्हेन यू डू इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या व्हाट हैपन, वी कैन सेपरेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना? NaCl, these are all आयनिक पार्टिकल्स में, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं इसको. सोडियम क्लोराइड, इसको अगर हीट करोगे, मतलब हीट बोलते हैं, आपको इलेक्ट्रोलाइज करोगे तो क्या होगा? सोडियम और क्लोरीन में डिवाइड हो जाएगा. समझ में आ रहा है? ये सब बैलेंस नहीं किया हुआ है, आपको बैलेंस करना होगा. जैसे बैलेंस करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ पे 2 लगाओ, बैलेंस हो गया. बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट. क्लियर हो गया? अभी देखो NaCl, नमक, ये सब सॉलिड स्टेट नहीं, ये सब मोल्टेन स्टेट में होता है, मतलब एक्वा सॉलिड में होता है, एक्वस फॉर्म में होता है. ठीक है. व्हेन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, व्हाट हैपन, इसको क्या करते हैं, Na और Cl में 2 भाग में अलग हो जाते हैं. ये ऑलरेडी ये आपका बैलेंस क्या हुआ इसमें. ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आता है CBSE में बार बार. इसको व्हाट हैपन व्हेन मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज हीटेड या फिर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड. दैट क्वेश्चन आता है. कंप्लीट द रिएक्शन when molten aluminum oxide is electrolyzed. तो आंसर क्या होगा? when molten aluminum oxide is electrolyzed, it's from what? Aluminum and oxygen. ऐसे करते हैं. एल्यूमिनियम जो बनता है ना, एल्यूमिनियम कैसे तैयारी करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऐसे करते हैं. तो ये बैलेंस नहीं किया है, वो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 3 है, 2 है, 6 एलसीएम है, तो यहाँ पे 3 लगा दो, 6 हो गया, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 4 लगा दो, बैलेंस हो गया. है कि नहीं? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. रख दो, एक क्वेश्चन लिखो, एक बढ़िया क्वेश्चन लिखो. कैसे क्वेश्चन होगा इसका कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ओके, व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट्स. ऐसा आ सकता है क्वेश्चन. ठीक है. या फिर और ऐसा लिखता है, व्हाट हैपेंस व्हेन, ऐसे लिखो, व्हाट हैपेंस, वो भी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन है. व्हाट हैपेंस when molten aluminum oxide is electrolyzed. तो बहुत मजा क्वेश्चन है ये. तो क्या होगा when molten, इसका आंसर क्या होगा? ये when molten aluminum oxide is electrolyzed, it from what? Aluminum plus oxygen is separated. I hope it is clear everyone. Very good. इसको बोलते हैं electrolysis decomposition. समझ में आया पूरा? Very good. Now look here. Now this light decomposition. बहुत सिंपल है. मतलब जो डिकम्पोजिशन लाइट के हेल्प से होता है, वो सनलाइट हो सकता है या लेबोरेटरी में कुछ गामा रे, अल्फा रे हो सकता है. सब समझ में आ रहा है ना बात जो? When decomposition reaction is carried out by in the presence of light. वो लाइट क्या भी हो सकता है, नेचुरल लाइट हो सकता है, आर्टिफिशियल लाइट हो सकता है. समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बहुत बड़ा एग्जांपल है एल्यूमिनियम क्लोराइड, सॉरी सिल्वर क्लोराइड. व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज given or is provided in the presence of light, it break into 2 different compound. Okay, what is that? Silver and chlorine. समझ में क्लोरीन गैस हो जाता है. यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो सॉलिड है, ये सॉलिड है, और ये भी ये सॉलिड है, लेकिन ये क्या है? गैस है. Similarly, when we take silver bromide, then also in the presence of light, what happen? It break into 2 different compound. What is that? ये एलिमेंट है ये एक्चुअली, सिल्वर एंड ब्रोमाइड. समझ में आ रहा है? ब्रोमाइड गैस. क्लियर हो रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो ये आजकल इतना यूज़ नहीं होता है, ये पहले यूज़ होता था. पता है कहाँ पे यूज़ होता था? ये वाला कहाँ पे यूज़ होता था पहले? पता है? 10-15 साल पहले बहुत यूज़ होता था ये रिएक्शन. हाँ, इट इज़ यूज इन मेनली वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी. पहले देखो बोलता ना कि फोटो धुलाने जाएगा, धुलाना है, बोलता ना फोटो किसने का देखो एक साथ नहीं देता. पहले उसका एक रिएक्शन कराता है वो फोटो से. क्या कराता है? ये वाला लाइट डिकम्पोजिशन कराता है उससे. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसको जब वो लगा देता है फोटो का ऊपर में, ये सिल्वर क्लोरीन बस सिल्वर ब्रोमाइड, ये कन्वर्ट होता है सिल्वर प्लस, और गैस उड़ जाता है, तो धूप में देना पड़ता है उसको. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दिस रिएक्शन इज वेयर इट इज यूज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वाट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड वाइट
वाइट एंड ब्लैक या ब्लैक एंड वाइट, वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी, वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी, याद रहेगा ये चीज़ को, है कि नहीं? दिस इज यूज इन मेनली वेयर वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी, ये हमेशा याद रखना है ये चीज़ को। या फिर कहेगा बुक में आपको क्या लेगा, और ब्लैक एंड वाइट भी एक ही बात है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, वाइट फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। समझ में आया बात? जो क्लियर हो गया कि नहीं बात? जो तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है आपका, ये है आपका लाइट डिकम्पोजिशन। आई होप इट इज क्लियर वेरी वेल। नाउ लेट मी आस्क अ क्वेश्चन कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जरूरी क्यों है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट्स वेरियस यूज, enormous number of uses are I have mentioned only few uses here. Okay, the decomposition reaction is carried out by electricity to extract various metal from the naturally occurring compound like chlorides और मिला आपको सोशल में, और है कि इन प्योर फॉर्म ऑफ मेटल। तो इन प्योर फॉर्म ऑफ मेटल से आप क्या करता है? आप प्योर मेटल निकालता है कि नहीं, है कि नहीं? जैसे सल्फाइड और सोचता है, तुम आगे बैठो ना, तो तुम यहाँ पे बैठो, हाँ। तो जैसे कि इनप्योर फॉर्म होता है ना, है कि नहीं? जैसे सोना बोलो, सोना भी एक इनप्योर फॉर्म में होता है। सो क्या करता है? उसको कैल्सिनेशन करके, रोस्टिंग करके, उसको डिकम्पोज करके हमको बहुत तकलीफ से निकलता है। लेकिन आप सोचता होगा ये सोना का दाम इतना क्यों है? दर्द से निकलता है, फ्री में निकलता है उसको। तो अरे भाई, उसको जो प्यूरीफाई करने के लिए इतना रुपये खर्च होता है ना, करोड़ों का मशीन यूज़ होता है उसमें, ठीक है? कैसे दम नहीं होगा? इतना इनप्योर जम के बैठता है उसमें, इतना सबको प्यूरीफाई करना पड़ता है। तो इसलिए क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म द प्रोसेसिंग में बहुत रुपये खर्च होता है फॉर द प्रोसेसिंग पर्पज। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग डिकम्पोजिशन इज अ मेन फैक्टर वेयर इट इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग, फॉर गेटिंग द प्योर सब्सटेंस ऑफ प्योर मेटल फॉर्म फ्रॉम दैट, और फ्रॉम दैट गंदा वाला गेंगू। समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैज वाइड इंपॉर्टेंस इन आवर एनवायरमेंट और इकोसिस्टम फॉर डिकम्पोजिंग गार्बेजेस। हम लोग तो सही देता है, सस्ता नहीं है, लेकिन कौन सड़ाने वाला कभी सोचा है? सड़ता कैसा है? हम लोग कभी सोचा है? माथा मारा उसके लिए? नेवर थॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करते हैं, है कि नहीं? वो लोग अलग अलग न्यूट्रन में फिर ज़मीन में उसको स्प्रेड कर देता है। जैसे कि आप जो भी केला खा के फेंका, उसका छिलका जमीन फेंक दिया, है कि नहीं? लेकिन 5-10 दिन का बाद आके देखो उसका गायब, कहाँ गया वो? उसको डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में घोल दिया, उसको फिर से डिके करके ह्यूमस बना दिया उसको। तो ये है यूजेस। क्या फील हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ईजी है, ठीक है? नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑल्सो टेक प्लेस इन आवर डाइजेशन सिस्टम। हम लोग जो खाना खाता है कि नहीं? ये खाना खाते हैं, यहाँ से कितना कुछ निकलता है, प्रोटीन अलग करता है, कि नहीं? प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, कैल्शियम, कितना कुछ अलग कर रहा है कि नहीं? जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोग का सिस्टम क्या है? ये वो डिकम्पोजिशन एक सिस्टम है, यहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है हम लोग। तो कितना अच्छा एग्जाम्पल है, सोचो डिकम्पोज, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है? क्लियर हो गया ना? वेरी गुड। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्या आप लोगों का? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन ये बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट सॉल्यूशन है। एग्जांपल देके समझाते हैं, लिख लिया? हाँ, मीन्स द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट सॉल्यूशन। मतलब जहाँ पे है, जिस कंपाउंड में है, जिस एनवायरनमेंट में है उन लोग रिएक्शन, ठीक है, एक सोल्यूशन में है उन लोग। बहुत मजा आ गया। देखो, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, इफ यू कंपेयर, देखो जिंक ज़्यादा ताकतवर है कॉपर से, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। उसको हरा सकते हैं, उसका रिएक्शन में वाला समझ में। और क्यों खतरा है ना, वही बोलेगा आपको हायर क्लास में, मैं हायर ये चैप्टर में। तो ये क्या होगा? देखो क्या होगा? जिंक सल्फेट, ये क्या होगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाएगा, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ ताकतवर कौन था? जिंक था, और इन्होंने क्या किया था? इसको हटा दिया अपने जगह से। अभी इस जगह इसको ले लिया, छीन लिया। हाँ, छीना छीनी मतलब छीना छीनी हम बोला था पहले भी शायद, है कि नहीं? ये बोला था शायद हम। देखो एग्जांपल, बहुत इजी एग्जांपल। मानो कि ए बी, मानो कि ए इसका गर्लफ्रेंड है, ठीक है, ए का गर्लफ्रेंड बी है। ये थोड़ा गरीब है, लेकिन ए जो ना साथ में और तो लड़का है, वो बहुत धनी है, मतलब सी है, क्योंकि चोर था ना वो। तो इसके पास गाड़ी सारी सब कुछ था, पैसा, बैंक बैलेंस सब कुछ था। तो ऑब्वियसली लड़की क्या इसके पास रहेगा क्या? हाँ, क्या करे लड़की? क्या होगा?
मतलब सच्चा प्यार नहीं हुआ तो ऑब्वियसली लड़की आ जाएगी ना साथ में, समझ फील आ रहा है कि नहीं समझ में, तो क्या होगा, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव है, सब कुछ है इसका पास, सेंस ऑफ ह्यूमर सब कुछ है इसका पास, है कि नहीं, गाना भी गा सकता है, बाइक गाड़ी पैसा सब कुछ है इसका पास। तो तुमको लगता है कि इस क्वालिटी नहीं होने वाला आदमी के साथ रहेगा, ये रहेगा, तो ये बेबी रहेगा नहीं, तो बेबी क्या होगा, चला जाएगा चौक के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो क्या होगा, सी आजा चौक के साथ बेबी, ये देखो बेबी आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। और इधर देखो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हाँ डिप्रेस हो गया, क्या हो गया, अलिफ ले ला ना, नहीं क्या हो गया, ये देवदास, क्या हो गया, देवदास देवदास। समझ में आया, क्लियर हो गया कि नहीं बात जो, तो साइलेंट, ओके कीप क्वाइट। तो ये रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, मतलब ज़्यादा ताकतवर वाला चीज़ क्या करता है, जो कमजोर वाला चीज़ को हटा देते हैं, हटो भाई हमको जीने दो, मेरा अमानत है वो, समझ में आया कि बात जो। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसलिए बोलता है मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। भूल जाएगा, नहीं पढ़ेगा कल भी, आज भी नहीं पढ़ेगा, क्लियर हो गया कि नहीं। यहाँ पे देखो सेम ऐसा हालत हो रहा है। तो आप लोग जैसे और एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल देखिए आपको समझाता है, जैसे कि कॉपर, देखिए कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम, ओके, कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम, हियर मैग्नीशियम इज मोर पावरफुल देन कॉपर, ये मेटल नहीं है ना, पॉलीएटम। तो क्या होगा, मेटल जो क्या कर लेगा, इसको सल्फेट को ले लेगा, तो क्या होगा यहाँ पर कि मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर, ये एकला हो गया देवदास। तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया क्या, क्लियर हो गया कि नहीं, हाँ, क्योंकि कॉपर कमजोर है ना मैग्नीशियम से, है कि नहीं, तो यही रीजन है। और आपका पास एक क्वेश्चन हो सकता है, सर हम लोग कैसे मालूम चलेगा कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन ज़्यादा कमज़ोर है कि नहीं, वो कैसे मालूम चलेगा, उसका एक चार्ट है, मैं दे दूँगा वो चार्ट को, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है वो। ये है वो पद्धति, हियर इज योर वे, ये है रिएक्टिविटी सीरीज, ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि याद करने के लिए। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, देखो यहाँ से क्या है, इसका रिएक्टिविटी क्या कम रहा है, लेकिन द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन दिस सीक्वेंस इज व्हाट, पोटेशियम, देन इज व्हाट, सोडियम, देन इज व्हाट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन का नीचे कम होता है, लेकिन मरकुरी, सिल्वर, गोल्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये रिएक्टिव सबसे ऊपर जो है वो खतर बहुत पावरफुल है, तो धनी मान लो, है कि नहीं, वो लूट लेगा किसी को भी, है कि नहीं। तो देखो यहाँ कॉपर क्या, कॉपर नहीं लिखा मैंने, कॉपर उसका हाइड्रोजन नीचे होगा, इसका बात ही कॉपर है, कॉपर इसका पास है, हाँ कॉपर, हाँ क्लियर हो गया, हाँ वेरी ध्यान से देखो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर देखो कॉपर है, जिंक, तो जिंक ऊपर है ना, कैल्शियम ऊपर है, जिंक देखो, जिंक यहाँ पे, कॉपर यहाँ पे, तो ताकतवर कौन है, जिंक है, तो जिंक देखो उड़ा लेगा इसका गर्लफ्रेंड, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे देखो कॉपर और मैग्नीशियम, आप जो बोला क्यों कॉपर ही क्यों लूटते हैं हमेशा, ये कॉपर का वजह है, तो हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, मैग्नीशियम क्यों लूट रहा है उसको, क्योंकि मैग्नीशियम देखो कहाँ पे है, उससे पावरफुल है मैग्नीशियम, देखा है कि नहीं, तो ऑब्वियसली लूटेगा कि नहीं। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ यू नो यू कैन क्रिएट एनी रिएक्शन नाउ, ओके। सो क्या पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन नीचे जो भी होता है, जो भी नीचे होता है हाइड्रोजन के नीचे में वो कम होता है, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकुरी, सिल्वर, गोल्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपको सोचा कैसे याद रखें इस चीज़ को, एक मैंने सिस्टम बनाया, मतलब इजी वे, जैसे कि ये क्या है, कैसे क्या, मान लो काना, याद रहेगा कि नहीं, देखो काना मतलब क्या है, जो अंधा है, मतलब काना मतलब क्या है, अंधा जो एक आँख से नहीं देखता है कि नहीं, उसको काना बोलता है कि नहीं। तो काना क्या कर रहा है, कार मांग के, है कि ना, वो कार किसी कार मांग, भाई कार दो तेरा चलाएगा बोल के ना, क्योंकि लॉकडाउन है, उसको कुछ खरीदने है बाजार से, आलू सालू नहीं है कुछ भी, समझ में आ रहा है कि ना बाजार क्या करना है। तो कार मांगा है, काना जो कार मांगा है ना, और कार मांगे क्या, आलू ले लिया बाजार से, लेकिन आलू में पर जंग घर के बैठा है, पूरा गंदा हो क्या आलू ना, बहुत दिन से नहीं खाया कोई भी, कि नहीं, पर जंग पकड़ के बैठा है, आलू जो क्या हुआ है, जंग पकड़ के बैठा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, आलू में जंग मतलब, आलू में जैसे जंग तो पकड़ता नहीं है ना, ऐसा हम बनाए आपके लिए, आलू कैसा नहीं होता क्या, जंग जैसा नहीं होता क्या, मतलब जंग है कि नहीं। तो देखो तो क्या क्या है वो, क्या जंग गिरा होता है, तो वो फेंक दिया उसको, आलू को फेंक दिया, जंग पड़ा हुआ है, क्या लेगा उसको, है कि ना, वो फेंक दिया उसको। बाद में क्या हुआ इसका पास, वो तो प्रॉब्लम ही है, प्रॉब्लम उसका पास फेंक दिया जो भी हालत था, वो प्रॉब्लम हो गया उसके पास ना, क्या करेगा, है कि नहीं। आगे कुत्ता हक दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं, कुत्ता आगे हक दिया, है कि नहीं। बाद में हकने के आगे क्या था,
सोना था। वो जो हागा था ना, वो क्या हागा नहीं था, वो क्या सोना था। समझ में आ रहा है कि नहीं ट्रिक जो? तो आपको ऐसे मजा लग गया ना बात को सुन के, समझ में आ रहा है? तो सुनो, बहुत मजा लग गया। देखो एक बार सिस्टम को देखो, क्या बोला पहले? काना कार मांग के आलू, आलू आलू क्या था? जंग, जंग पड़ा हुआ था। तो वो की फेंक दिया, फेंकने का तो प्रॉब्लम है ना, तो प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम मतलब पी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है कि नहीं? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम मतलब ना। तो कुत्ता आगे हक दिया है ना, कुत्ता हागा मतलब उसका आगे सोना, आगे सोना मतलब ए जी मतलब आगे सोना। याद रहेगा कि नहीं बात जो? कितना बढ़िया सा हो गया देखो। तो आराम से बोल सके। अभी देखो जैसे भी आप नहीं देगा अनभाग का बोल सके कि नहीं? ये देखो अभी मानो कि ऐसे ऐसा दे रिएक्शन, ये देखो मैग्नीशियम सल्फेट, ओके साइलेंट, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस जिंक बोला है। बोलो अभी क्या होगा? मैग्नीशियम सल्फेट। अभी देखो मैग्नीशियम पावरफुल है ना, जिंक पावरफुल है। देखो यहाँ मैग्नीशियम पावरफुल है, तो ये ध्वनि है उल्टा, तो गरीब का बजाएगा गर्लफ्रेंड, तो रिएक्शन होगा? ये रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पे। अरे जिंक क्या होगा? कोई बुड़बक लिख देगा ना जिंक सल्फेट, ओ हीरो गोचू, कुछ भी नहीं होगा, गलती डायरेक्ट। क्या होगा? नो रिएक्शन। क्या होगा? नो रिएक्शन, नो चेंज। क्यों रिएक्शन नहीं होगा? अरे भाई वो तो स्टेबल है ना, वो पावरफुल नहीं है इससे, तो कैसे होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं बात जो? या फिर और भी एग्जांपल लो, जैसे कि मानो आपका मानो कि मैग्नीशियम सल्फेट, लेकिन उसका ऑपोजिट उसका अमीर बाप का बिगड़ा हुआ एक लौटा आ गया, उसका नाम था तुम्हारा मानो कि वो मानता कैल्शियम था, ठीक है ना? कहाँ आप बोलो लड़ा है कि नहीं? ले सही है कि नहीं? इसका इसे भी हैवी है कि नहीं? ये पावरफुल है कि नहीं? ये तो क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट। तो क्या होगा यहाँ पे? कैल्शियम सल्फेट प्लस क्या होगा? एकला क्या बचेगा? बेचारा रो रहा है एकला ज़्यादा, है कि नहीं? मांग के भी कुछ नहीं हुआ है, वो कुत्ता ले लिया मेरा वाला। समझ में आ रहा है कि ना बात जो? ये है पार्ट। तो ये इसको बोलता है रिएक्टिविटी सीरीज। ये पूरा पक्के दिल से इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रहेगा किसको? कैसे याद रखा आप लोगों को? काना कार मांग के आलू लिया ना, आलू जो जंग पड़ा हुआ था फेंक दिया उसको, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम उसका। कुत्ता हक दिया, ले हागा नहीं था, आगे की सुनना था उसका। समझ में? नाउ यू से दिस रिएक्शन, क्या रिएक्शन पॉसिबल है? कॉपर सल्फेट प्लस Fe पॉसिबल है रिएक्शन? हाँ क्यों नहीं? कॉपर तग रहा है उसका पास। क्या कॉपर तग रहा है? कॉपर इतना कमजोर है, कॉपर इतना लल्लू है, कुछ है ही नहीं उसके पास, है कि नहीं? तो क्या ये आयरन है भाई? आयरन देखो कितना ऊपर है, यहाँ पे नहीं आयरन। तो क्या होगा ये? FeSO4 प्लस Cu। समझ में आया ना? इसको बोलता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो किसी भी क्वेश्चन कर सके? मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ये वीडियो में क्या दिखाएगा रहने दो। अभी देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये सब जो हमेशा याद रखना कि कॉपर सल्फेट जो होता है ना, वो ब्लू कलर का होता है। क्या कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। दिस आर ब्लू सोल्यूशन, इसको बोलते हैं ब्लू सोल्यूशन। याद रखना, आपको केमिस्ट्री में बहुत सारा प्रैक्टिकल भी आएगा, आपको दिखाई भी मिलेगा कि ब्लू सोल्यूशन क्या होता है, कॉपर सल्फेट ज़्यादातर केस में। क्लियर हो गया? ये क्या कलर का होता है? ब्लू सोल्यूशन बोलते हैं इसको। और जो जिंक है ना, ये जिंक का क्या पता है? जिंक का कलर क्या होता है? सिल्वरी वाइट। क्या होता है? सिल्वरी वाइट। ये हमेशा याद रखना है। और ये जो होता है ना जिंक सल्फेट, ये होता है कलरलेस सोल्यूशन। क्या होता है ये? कलरलेस सोल्यूशन। याद रखना हमेशा, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, कलरलेस सोल्यूशन। और ये होता है ना रेड ब्राउन होता है। ये क्या होता है इसका? रेड ब्राउन। आई होप इट इज क्लियर। ब्लू सोल्यूशन, सिल्वरी वाइट, कलरलेस सोल्यूशन एंड रेड ब्राउन, याद रखना। और ये भी सब ब्लू सोल्यूशन ही है। मैग्नीशियम सिल्वरी वाइट होता है, कलरलेस सोल्यूशन वही है। ये भी क्या है? सिल्वरी वाइट ही होता है ये, याद रखना, सिल्वरी वाइट। और ये क्या है? सेम थिंग, कलरलेस सोल्यूशन। ये दोनों सेम हो रहे हैं, कलरलेस सोल्यूशन। और ये भी रेड ब्राउन, है ना? सेम थिंग है ब्लू सोल्यूशन। आयरन क्या कलर का होता है पता है ना? ग्रे कलर का होता है। क्या होता है? या ग्रे। क्या कलर का होता है? ग्रे। और ये होता है ग्रीनिश सोल्यूशन। क्या होगा? ग्रीनिश। इसका कलर क्या? हाँ ग्रीनिश। ये ग्रीनिश सोल्यूशन होगा। ये क्या होगा? ग्रीनिश सोल्यूशन। और ये क्या होगा? वही सेम, रेड ब्राउन। समझ में आ रहा है कि नहीं बात जो? तो आपका जो क्वेश्चन आ सकता है ना, विद द हेल्प ऑफ कलर से भी आ सकता है, ठीक है? ऐसा आ सकता है कि ए ब्लू सोल्यूशन, व्हेन ए ब्लू सोल्यूशन इज रिएक्ट विद ए सिल्वरी वाइट सब्सटेंस, इट प्रोड्यूसेस ए कलरलेस सोल्यूशन अलॉन्ग विद रेड ब्राउन। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा, अरे सर यहाँ पे भी कलरलेस सोल्यूशन था, यहाँ पे भी रेड सोल्यूशन था, है कि नहीं? यहाँ पे भी तो कलरलेस सोल्यूशन, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे भी ब्लू है, यहाँ पे ब्लू है, ऐसे अंतर किस में? समझ में आ रहा है कि नहीं बात जो? तो ये कन्फ्यूज हो जाएगा ना। तो आप कन्फ्यूज होता ना, किसी एक को लिख देना, हो गया।
देख कन्फ्यूज होता ना कैसे, अरे कौन सा क्वेश्चन तो आएगा ना, अरे दोनों में तो सेम ही है कलर, ये ब्लू है सिल्वरी वाइट है, ये भी ब्लू है सिल्वरी वाइट है, जो सोल्यूशन आएगा जिंक सल्फेट कलरलेस है, मिनेरल सल्फेट कलरलेस है, कॉपर भी रेड ब्राउन है, कॉपर भी रेड ब्राउन है, तो क्या लिखिए, तो क्या करो चिंता मत करो बेटा, दोनों एक भी लिख दो, एक भी जो भी लिख दो, एक टू हो गया। समझ में आया क्या क्वेश्चन जो, लेकिन अगर बोले कि नहीं ब्लू सोल्यूशन जो ग्रे कलर का सा रेड हो रहा है, अभी क्या होगा, अब बनता है क्या ग्रीनिश बन रहा है और रेड ब्राउन बन रहा है, हाँ तो याद रहना कि जो ग्रे कलर का होता है ना वो क्या होता है, आयरन का होता है, तो जो ग्रीनिश होता है ना वो क्या होता है, फेरस सल्फेट। क्लियर हो रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, हाँ तो ऐसा क्वेश्चन आता है विद द नेम ऑफ कलर, कलर से क्वेश्चन देगा आप लोगों को, ऐसे घुमा कर देगा क्वेश्चन, ठीक, और कंप्यूटर रिएक्शन बैलेंस करो उसको, ऐसा टाइप का क्वेश्चन देगा आप लोगों को। क्लियर हो गया ना, ये फंडा को क्लियर कर रखना। तो आई होप डिस्प्लेसन तो पूरा पक्की तौर से क्लियर हो गया शायद, है कि नहीं, पूरा कुछ तकलीफ है, कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया, कॉम्बिनेशन है कि नहीं, डिकम्पोजिशन क्या है, थर्मल थर्मल वो क्या है कि नहीं, और अभी ये क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी क्लियर हो गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चीज़ खतरा चीज़ बोला आप लोगों को, याद रखना किसको। दमदार वाला क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है, ध्यान दो पर से, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। तो ये देखो क्वेश्चन ऐसा दिया है, कॉपर क्या है, कॉपर क्लोराइड, व्हेन कॉपर कॉपर रिएक्ट विद द लीड, तब क्या होगा, लीड कौन सा पोजीशन कहाँ पे है, क्या ये रिएक्शन मुमकिन है, हाँ क्या या नहीं, कॉपर हाँ क्योंकि ये पावरफुल है, यू कैन सी द इफ यू लुक थ्रू द रिएक्टिविटी सीरीज, सबसे क्या कॉपर ऊपर, कॉपर नीचे है कि नहीं, इसको ऊपर दो ऊपर क्या है लीड है, दैट मीन्स द रिएक्शन इज पॉसिबल। सो व्हाट इट विल आंसर, लीड क्लोराइड Cl2 लीड Cl2 प्लस क्या होगा कॉपर, अलविदा एकला हो गया। समझ में आया कि नहीं, रिएक्शन खत्म। ऐसा तो क्वेश्चन, लेकिन आपको पूछेगा नहीं कलर सलर को भी बताओ, तब बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर को भी बताना होगा। ये होता है ना, ये क्या होता है, ये ग्रीन सोल्यूशन होता है, यहाँ पे ये ग्रीन सोल्यूशन होता है, ग्रीन सोल्यूशन। और ये लीड का कलर क्या होता है पता है, ये ब्लूइश ग्रे होता है, क्या होता है ब्लूइश ग्रे। और जो लीड क्लोराइड है ना उसका मतलब इसका होता है, इसका कलरलेस सोल्यूशन होता है, ये क्या होता है कलरलेस सॉल्यूशन। और तो कॉपर पता है क्या होता है, रेड ब्राउन। समझ में आ रहा है कि नहीं केस। अभी देखो इसको देखो, सिल्वर नाइट्राइड विथ कॉपर, तो क्या होगा, देखो क्या होगा कॉपर, क्या होगा कॉपर नाइट्राइड, कि कॉपर और जो सिल्वर में कौन सा तगड़ा है, देखो तो कॉपर तगड़ा है क्योंकि सिल्वर तो नीचे में, तो क्या होगा देखो कॉपर नाइट्राइड NO3 कॉपर नाइट्राइड प्लस सिल्वर क्या हो गया, एकला हो गया, है कि नहीं, सेम तो वही डायरेक्शन है। तो ये जो सिल्वर नाइट्राइड का होता है ना, उसका कलर होता है वो भी कलरलेस होता है, क्या होता है कलरलेस सॉल्यूशन। और ये जो कॉपर क्या होता है वो भी क्या होता है रेड ब्राउन। और जो कॉपर वो तो आता है ब्लू सॉल्यूशन, ये होता है ब्लू यार, ये होता है ब्लूइश वाइट, ये ब्लू सॉल्यूशन है। सिल्वर क्या होता है सिल्वर सॉरी ग्रेइश वाइट होता है, ग्रेइश वाइट क्या होता है, ये सिल्वर कलर देखेगी कि नहीं, ग्रेइश वाइट GREY ग्रेइश वाइट। समझ में आया, क्लियर हो गया। हाँ वही याद रखना कि ये कलरलेस सोल्यूशन ये रेड ब्राउन कलर का होता है कॉपर, और ये ब्लू सोल्यूशन ये ग्रेइश वाइट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, चलो। आयरन प्लस HCl क्या रेट होगा कि नहीं, है कि नहीं, क्या होगा FCl, क्या होगा FeCl2 प्लस यहाँ पे H2। समझ में आ रहा है कि नहीं, H2 क्योंकि ये गैस है इसलिए H2 वो हो रहा है, शामिल हो रहा है यहाँ पे। क्लियर हो रहा है कि नहीं। हाँ इसका कलर सलर जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है। और ये क्या सॉलिड है, ये लिक्वस है, ये सॉलिड है, ये क्या है एक्वस है। तो ये क्या बनेगा, ये एक्वस है, ये गैस है। ये सब इतना ज़रूरी नहीं है आपको क्लास 10 के लिए। सेम थिंग यहाँ पर देखो, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तगड़ा कौन सा है यहाँ पे, मैग्नीशियम यहाँ है ना या हाइड्रोजन है, मैग्नीशियम है, तो क्या होगा MgCl2 प्लस H2। समझ में आ रहा है ना बात जो, ये सेम थिंग है। यहाँ पे क्या होगा देखो NaH2O, तो क्या होगा NaOH। ये याद ध्यान देना इसको, क्योंकि ये टूटेगा तो दो भाग बनेगा, एक टू बनेगा H प्लस, एक टू बनेगा OH माइनस। क्लास 9 में सिखाया था आप लोगों को। तो H माइनस को लेगा NaOH प्लस, यहाँ पे क्या था अलविदा H2 एकला हो गया, रो रहे हैं। सेम थिंग था Cl प्लस HKI, I का मतलब क्या है यहाँ पे आयोडीन।
तो क्या होगा, कैल्शियम आयोडाइड, सॉरी ये Cl मतलब यहाँ पे Cl ये है, Ca है यहाँ पे, सॉरी Cl2 यहाँ पे, Cl2 ये है, Cl2 गैस है यहाँ पे। तो क्या लेगा ये, इसको ले लेगा KCl प्लस I2, पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन। सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या होगा, CuO यहाँ पे क्या होगा, देखो क्या होगा, ये मैग्नीशियम क्या ले लेगा, इसको ले लेगा, हाउ विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर। सेम थिंग यहाँ पे देखो फेरी ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। सो वी हैव कंप्लीटेड few displacement reaction. Please remind it, it's very important. एक ना एक तो आएगा ही यहाँ से, इतना श्योर, इतना इंपॉर्टेंट है सब। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, कुछ डाउट है तो, किस में डाउट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा क्लियर हो गया कि नहीं? ओके, तो सिंपल है, क्लियर एवरीबॉडी। अभी हम लोग नेक्स्ट में भागते हैं, और वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग, देखो बहुत मजा लगेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, द सेकंड लास्ट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो ध्यान दो, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ एन आयन, एक्सचेंज ऑफ ए आयन होगा, ऑफ एन आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है? सो थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, हम इजी लैंग्वेज में समझा देते हैं, समझेगा। हम लोग क्या पढ़ा था कि उसमें क्या पढ़ा था उसमें, हाँ, जैसे कि मानो कि ए का गर्लफ्रेंड कौन था, बी था, और सी अगर बहुत रिलेटिव है तो क्या करता है, ए जो उसका गर्लफ्रेंड को छीन जाता है, तो क्या बनेगा, सी बी प्लस ए अकेला ना, तो ये होता है अकेला देवदास, है ना। लेकिन क्या करता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दोनों का गर्लफ्रेंड होता है, क्या होता है, दोनों, देखता है ना फिल्म में, है कि नहीं, इसका पत्नी उसका पत्नी ऐसा होता ना। तो इधर देखो, तो क्या ए बी प्लस सी डी, मानो कि इसका गर्लफ्रेंड ये है, इसका गर्लफ्रेंड ये है, समझ में आ रहा है ना ताकि आप लोग ज़्यादा समझ में आए इसलिए ना। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, तो देखो क्या हो रहा है, तो ये सोच ये से अलविदा हो गया, मतलब ब्रेकअप हो गया मानो, ये भी क्या हो गया, कुछ हो गया कि नहीं। तो क्या गया, भाई भाग, ये शायद उसको पसंद कर रहा है, शायद ज़्यादा अच्छा सा, है कि नहीं। तो ये क्या कर रहा है, भाई आ जाओ, ये हमसे मेरा लाइफ से कैंसिल, है कि नहीं। तो ये क्या किया, इसको इसका गर्लफ्रेंड ले लिया, या फिर समझ में आ रहा है बात जो ना। तो क्या किया है, सी जो बी को ले लिया, और ए जो क्या कर दिया, डी को ले लिया। कैसा लगा, समझ में आया ना, पूरा क्लियर, शॉर्टकट में बोल दिया डायरेक्ट। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट ना, दोनों का गर्लफ्रेंड अदल बदल के है कि नहीं, भाई तुम मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाता है कि नहीं। तो वही हो गया ऐसे, समझ में आ रहा है क्या जो। तो यही बात जो यहाँ पे हो रहा है, ए बी प्लस सी डी क्या हो जाता है यहाँ पे, सी बी प्लस ए जो बी को ले लेते हैं। यही बेटा क्लियर हो गया कि नहीं। सेम देखो यहाँ पे ऐसे होगा, सोडियम प्लस सल्फाइड, yeah, same thing is going on here also. Look here, sodium and sulfide when you react with barium chloride, what happen is that क्या होगा, ये बेरियम क्या लेगा, इसको ले लेगा, है कि नहीं, ये ले लेगा इसको, तो क्या होगा, Ba बेरियम सल्फेट, वेरी गुड, प्लस NaCl, it become NaCl। क्लियर हो गया, सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड, in return it produces barium sulfate plus sodium chloride. I hope it is clear. Excellent. And this is what we call the exchange of ion. The exchange of ion takes place between them, and this is called a double displacement reaction. Question: AgNO3 plus NaCl. Same बोल दीजिए, सकिया ना? क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे? Na क्या होगा? NaNO3 प्लस क्या होगा? हाँ AgCl. Very good. ये एक्सचेंज हो गया आपस में। Okay, this is called double displacement reaction. There is one, इसका अंदर में टॉपिक आता है precipitation reaction, उसको भी लिख लो, बहुत इजी है। हाँ, precipitation reaction, come on write it down, very easy, simple question. यहाँ पे ये जो ये white PPT होता है, white PPT। ना लिखो, समझ में आएगा क्या है precipitation reaction, क्या है precipitation, क्या है। Okay, write it down. Okay, very nice. What is this? ये ज़्यादा नहीं आता है लेकिन है अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। Precipitate reaction. Any reaction that produce precipitate can be called as precipitation reaction. Precipitate का मतलब क्या होता है? एक तो undissolvable white substance. जैसे ये आपको एग्जांपल एक्चुअली वो है नहीं,
अगर साबुन से मानो कि धुलाया कपड़ा सपड़ा है कि नहीं, तो देखो ऊपर में एक फोम नहीं अलग से गंदा तो तैर के बैठते हैं, वो मिलता भी नहीं है पानी के साथ, मिलता भी नहीं, गंदा सामान है मतलब ना, वो फोम भी नहीं है, अलग से तो गंदा सामान है तो ना, ऊपर लेयर गंदा एक तो वाइट करके रहता है ना, साबुन का जैसा थोड़ा थोड़ा होता है, उसको बोलते हैं ना, वो पानी से मिल रहा है ना, वो फोम है ना कुछ है, वो गंदा एक्चुअली ना, वो मिल रहा नहीं एक्चुअली पानी का साथ, वही है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या है, अनमिक्सेबल या फिर अनडिजोल्वेबल वाइट सब्सटेंस। क्लियर हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे वही हो रहा है कि ये देखो इसमें जो है ना, एक अनडिजोल्वेबल सब्सटेंस है, लेकिन अनडिजोल्व वाइट सब्सटेंस है, प्रेसिपिटेट बोलते हैं उसको। मिले केमिस्ट्री में जब करेगा ना आप लोग का प्रैक्टिकल, तब समझ में आएगा आप लोगों को। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब एनी रिएक्शन, जो भी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिट बनेगा, सिर्फ डबल डिस्प्लेशन बोल के नहीं, जो भी रिएक्शन साबुन भी अगर करेगा ना, तो वो प्रेसिपिट निकलेगा वाइट सब्सटेंस। कभी देखो मक्खन बनाएगा तभी थोड़ा थोड़ा निकलता है वाइट भास के बैठते थोड़ा सा, ठीक है ना? तो वही है प्रेसिपिटेट, मतलब वो क्या सामान है जो मिक्स नहीं हो रहा पानी के साथ और नहीं मिक्स हो पा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात जो? तो यही है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। समझ में आया शायद, क्लियर हो गया शायद? तो यहाँ पे ये भी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ये भी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, क्योंकि ये भी एक वाइट पीपीटी है, ये भी एक वाइट पीपीटी है। कैसा लगा, समझ में आया? वेरी गुड वेरी गुड। नाउ लास्ट टॉपिक वी शैल मूव ऑन, दैट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। कॉपर सल्फेट पर हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है? ये देखो सल्फाइड है, आईडी वाला मैं बोला था ना, 3 सल्फाइड है, सल्फाइड सल्फाइड सल्फेट ATE बोला था ना, क्या बोला था उसका भैया? IT कॉलेज में पढ़ता है कि नहीं? तो क्या ID लेकर IT कॉलेज में वहाँ पे खाता है कि नहीं? तो ये ध्यान देना है इसमें। तो कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होगा इसमें? कौन क्या इसको लेगा? अभी ये इसको लेगा कि नहीं? ये मेटल है मतलब ऐसा, तो क्या होगा? नहीं यहाँ पे इसको ये लेगा है कि नहीं? इसको ये लेगा, क्या होगा ये? CuS प्लस ये इसको ले लेगा ना, H2SO4। समझ में आया शायद? क्लियर हो गया कि नहीं? समझ में आया? नेक्स्ट ये देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस, देखो हम पूरा डीप घुस रहे हैं इसमें, थोड़ा तो तकलीफ हो सकता है अभी। सर हाँ, H2SO4 को आगे लिखने से नहीं होता। H2SO4 को आगे हाँ लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, वही बोल रहे हैं ना, ऐसे लिखना था H2SO4 प्लस CuS, हाँ नो प्रॉब्लम, दोनों राइट है। तुम ऐसा बात कर रहे हैं सर, क्या 2+3 कितना होता है सर? 6 होता है ना सर, क्या हम लोग 3+2 क्या नहीं लिख सकते क्या सर? हाँ वो लिख सकता है, क्यों ना, डेफिनेटली श्योर। हाँ और या क्या कर रहा है ये? अरे भाई सच में कि नहीं? 3 × देखो 3 × 2 कितना होता है? 6 होता है, 2 3 6 क्या होता है? ऐसा बात है, जहाँ से भी ले सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात जो ये? ओके लुक हियर, वेरी इंटरेस्टिंग चीज। तो अभी देखो इसको, देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस एमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो कैसे करेगा? ये क्या है? अभी देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये इसको ले लेगा है कि नहीं? तो क्या होगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का पावर कितना होता है? 3 होता है कि नहीं? हाइड्रोक्साइड 1 होता है, इसका 3 होगा। डायरेक्ट कर दिया, देखो कैसे? देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एल्यूमिनियम क्या कितना होता है? Al, तो पावर कितना होता है? 3 प्लस, हाइड्रोक्साइड कितना होता है? 1 माइनस, तो अगर ऐसे करेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? Al1 OH3 प्लस, अभी क्या बचा? NH ना, ये एमोनियम क्या होता है? NH4Cl, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। चलो क्लियर? अभी नेक्स्ट देखो, ये खत्म फिनिश, इतना इजी है। देखो लीड नाइट्राइड प्लस ये क्या है? पोटेशियम आयोडाइड, तो क्या होगा? लीड आयोडाइड, क्या होगा? लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्राइड। समझ में आया शायद? क्लियर? वेरी गुड। अभी देखो NaOH प्लस HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बनेगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। अभी कुणाल सोच रहा होगा सर HOH होगा ना सर, HOH होगा ना, है कि नहीं? सोच रहा होगा, अरे भाई इसको ऐसे नहीं लगता हम लोग, तो HOH होने से क्या लगेगा? H2O। ठीक है, एग्जाम में ऐसे लेके मत करना, लेकिन हाँ दो तो H नहीं है क्या, एक साथ मिला था उसको। क्लियर हो गया? पीपीटी में प्रेसिपिटेशन जो पहले लिखा था, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वही है जो अनडिजोल्वेबल फॉर्म है ना। तो देखो यहाँ पे जो वाइट पीपीटी लोग क्या है, ये एक्चुअली ये सब पीपीटी है। हाँ इसमें ये सब पीपीटी है, फर्स्ट वाला जो कॉपर सल्फेट एक्चुअली ब्लैक पीपीटी होता है, ब्लैक पीपीटी। और ये होता है ना, ये होता है वाइट पीपीटी, और ये क्या होता है? येलो, लीड आयोडाइड होता है, येलो पीपीटी। ये याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन एरर हो सकता है ऐसा करके।
Okay, I hope it is clear. The last topic of the chapter is left. That is what? Oxidation and reduction. Shall we complete or what? Hello, now let us move to the next topic, that is your oxidation and reduction. This is the last topic, means second last topic of the chapter. We'll understand this very nicely. So what is oxidation? ये है क्या? Oxidation होता है क्या? Simple सा फंडा है, देखो ध्यान से. The addition of oxygen to a substance or the removal of oxygen from the substance is called oxidation. देखो example के तौर पे, this is a simple example I am giving here. यहाँ पर ऑक्सीजन का लगाव हो रहा है. यू कैन सी देयर इज एन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस. सो यू कैन से यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है. सो व्हाट डज एक्चुअली मीन्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जोड़ना टू ए सब्सटेंस, एक समान या फिर कंपाउंड में जोड़ना, इसको ऑक्सीडेशन. यस, और एक इसका डेफिनेशन है द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन. ये दो डेफिनेशन को याद रखना. इट इज यू विल बी डैम क्लियर अबाउट दिस टॉपिक. दिस वन अगर पूछेगा तो ऑक्सीडेशन क्या है 10 लेवल में क्या बोल सकते हैं आप? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, व्हाइल द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशंस. रिमेंबर दिस थिंग. बट व्हाट इज रिडक्शन? इसका ऑपोजिट रिवर्स है ये. द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन. ऑल्सो द रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन. रिमेंबर ये चीज़. आइए मज़ा लग गया. इसका ऑपोजिट ये है. देखो ये इधर पे कि कॉपर ऑक्साइड, लेकिन उस पर जाके क्या हो गया? इट बिकम कॉपर, इट बिकम ओनली कॉपर. सो क्या हुआ? कॉपर, इसका क्या हुआ? इसका हुआ रिडक्शन. इसका क्या हुआ? रिडक्शन. इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ. लेकिन इनका क्या हुआ? इनका हुआ ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन बिकॉज हियर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस. सो वी कैन से दैट the oxidation takes place in case of hydrogen, while reduction takes place in case of CuO, copper oxide. There's two more terms. Okay, I hope the definition is clear. So pause the video to note it down. It's very important thing. So this is very important terms. ये 4 टर्म इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है. सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिडक्सिंग एजेंट. ये 4 पॉइंट को ध्यान देना. Let me explain this topic with the example of an example of this reaction. देखो इधर में क्या है? कॉपर ऑक्साइड react with हाइड्रोजन गैस, it forms copper plus water. आसान सा रिएक्शन है. तो आप क्या बोलोगे? किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या किसका रिडक्शन हो रहा है? मैंने आपको साफ साफ बताया कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो अब साफ साफ दिखाई मिल रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है. इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है. वेरेस कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. रिडक्शन हो रहा है इधर. क्लियर? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, किसका ऑक्सीडाइज हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है H2 का. एंड ओनली इन दिस 4 पॉइंट. ओके, आई विल एक्सप्लेन इट, डोंट वरी. सब्सटेंस रिड्यूस, किसका रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर? ऑब्वियसली इसका हो रहा है रिड्यूस, दैट मीन्स CuO. अब ये पूछोगे कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एजेंट? एजेंट का मतलब क्या है? किसका वजह से? वजह. एजेंट का मतलब होता है किसका वजह से. फॉर हुम, फॉर द पर्पस ऑफ हुम. आप इस काम को क्या, आपका एजेंट कौन था? आपका साथ कौन था, या फिर आप किसके जरिए से किया? एजेंट, उसका मतलब होता है. सो ऑक्सीडेशन एजेंट मतलब क्या? किसका वजह से ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पर जो हुआ, किसका वजह से हुआ? अभी इसको करने के लिए आपको पहले देखना होगा, यू हैव टू सी दैट किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर. इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन किसका वजह से हो रहा है? इनका वजह से हो रहा है. CuO, कॉपर ऑक्साइड का वजह से ही इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. अगर ये नहीं होने से ये इसका तो ऑक्सीडेशन होना नहीं था. तो वजह कौन सा? इसका वजह कौन सा है? ऑक्सीडेशन वजह कौन सा है? वजह ये है, यही वजह. तो वजह क्या लिख सकता है? कॉपर ऑक्साइड. आई होप इट इज क्लियर. सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट, किसका रिड्यूशन हो रहा है? इसका हो रहा है, लेकिन किसका वजह से हो रहा है? अगर ये नहीं था तो, अगर ये नहीं होने से नहीं होना था. I hope it is clear. I think you are able to catch what I actually mean to say. Means here the reduction takes place of this compound. For whom?
What is the reasons of reduction here? The main reason for reduction is this H2. That means the reduction agent is H2. I hope it is clear. The reduction agent is H2 here. So simple deal. I hope it is clear very well. So let me give one more example so that you can clearly understand it. Let me have it. So now is one more. Just proceed with another questions here. Say H2S hydrogen sulfide plus chlorine gas gives you sulfide plus hydrochloric acid. अभी देखो आप सोचोगे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भाई यहाँ पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं देयर इज नो एनी mentioning about the oxygen. So how can you say that whose oxidation takes place? I already mentioned one thing, that oxidation means what? Addition of oxygen or removal of hydrogen. Removal of hydrogen. Removal of hydrogen का मतलब भी क्या होता है? Oxidation ही होता है. So what you can see that इसमें देखो कि यहाँ पर in this compound there was in the presence of H, but इस compound में नहीं है H, मतलब यहाँ से H चला गया. That means आप क्लियरली देख सकते हो कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इधर पर, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. एंड बट इन दिस केस यू कैन सी इसका हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है. एंड वी ऑल्सो नो दैट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन. सो वी कैन से द रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस इन क्लोरीन मॉलिक्यूल. इट इज रिडक्शन. से रिडक्शन. वेरी गुड, फैंटास्टिक. सो व्हाट कैन यू से? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज whose oxidation is taking place here. H2S oxidation is taking place. In H2S oxidation taking place. In which case, in whom the reduction is taking place? The reduction is taking place in gas of chlorine molecule. Now, let us come to this point. What is oxidation agent? What is oxidation agent? Oxidation agent means what? किसका वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है? किसका हो रहा है? इसका हो रहा है. किसका वजह से हो रहा है? इसका वजह से हो रहा है. That means Cl2. रिडक्शन एजेंट किसका हो रिडक्शन? इसका हो रहा है. किसका वजह से हो रहा है? इसका वजह से हो रहा है. दैट मीन्स H2S इज द रिडक्शन एजेंट. आई होप इट इज क्लियर. आई होप इट इज क्लियर. इट्स वेरी सिंपल टॉपिक. सो फाइनली आवर ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज फिनिश. सो लास्ट वन मोर टॉपिक लाइक दैट इज व्हाट? rancidity and corrosion. You know, you are very familiar with these two terms, very simple terms. Now let us see this topic, corrosion and rancidity. What does these two terms actually means here? So look here carefully. Corrosion means what? Corrosion is the process in which metals are degraded by the action of air, moisture or chemical on the surface. So have you familiar with the word rusting? वो तो पता है rusting है तो होता क्या actually? You can see when any metallic parts or any iron bodies come in contact with the moistures, air and the surrounding, what happens is that it gets corroded, it gets rusted up, it gets eaten up by these molecules and cause a brown flaky layers above the iron surface, and which is mainly known as rusting of irons here. So rusting of iron is also a common phenomena, or it's a common form of a corrosion only. So rusting is not a different thing, it is also a common form of corrosions. I hope it is clear. It is mainly taking place with a reaction. Oxidation takes place here. That's the region of rusting. Let me give one actually now let me give one definition to you. So here comes a very beautiful question. What do you mean by rusting of iron? It's a good question. What actually we mean? It's a very simple term. What happens is that when we keep an iron body exposed for a long duration of time, when an iron object is left in dumb air for a long considerable time, it gets covered with a red brown flocky substance, and that is called rust. And that reddish brown flocky substance is called rust. And this phenomena, or whatever you say, is called the rusting of iron. And this is the reaction that takes place actually in the rusting process. So when iron reacts with oxygen along with the combination of water molecules, this is taking place. It is called the hydrated iron 3 oxide. Hydrated iron 3 oxide. And it is called rust in simple form. Hydrated iron 3 is there, na? Iron 3 is two form of iron. One iron having valency 2 plus, and another iron has valency 3 plus. You got it? So this is what we call rust. I hope it is clear very well. Now, so another important topic here we're going to discuss here.
So what are the disadvantages of corrosions? There's a wide ranges. There's a enormous numbers of disadvantage are taking place due to the corrosions in our day-to-day lives. Such as you can see that corrosions weakens the iron and steel objects and structure. As in most of the because you know the steels are called the backbone of industrializations. So you can see most of the railway bridges and big industries and a kind of warehouse and a workshop, these are made up of steel, aluminum and all. So due to repeated or due to enormous corrosions, this get damage, wastage, and it's caused massive property loss for humans resources. So you can see the corrosions weaken the irons and the steel objects and structure. Even the car bodies, bridges, ship, so many things. It's damaging, and when what happens is that the corrosion reduces the lifespan of the particles, often lifespans of the object, etc., and cut the short their lives. Every year, an enormous amounts of money is spent to replace damaged irons. Every year, throughout the year, large number of money is been spent to recycle or kind of to recover this waste of the humans property. Thank you. So here comes the next topic, is that rancidity. It's a very common phenomena that we come across to see in our daily life and everyday life basis. Now what does the term actually means? What does it actually means? मतलब है क्या actually? देखो सुनो ध्यान से मतलब. तो एक्चुअली ये एक तरह का ऑक्सीडेशन है. रेंसिडिटी मतलब कि खाना सड़ जाना ड्यू टू द ऑक्सीडेशंस. मतलब उसमें अगर हवा घुस जाएगा. हैव यू सीन द पैकेट्स ऑफ कुरकुरी, चिप्स एंड व्हाटएवर, चना, दाल, व्हाटएवर, दे आर पैक्ड सो नाइसली इन एयर टाइट मीडियम इन अ पैकेट. क्यों ऐसा क्यों करते हैं इसको? वाई दे नीड टू एनक्लोज इन सच एयर टाइट पैकेट? वाई? ताकि उसमें ऑक्सीजन एंट्री ना करे. और ऑक्सीजन ऐसा चीज़ है जो उसमें जिसको नरम कर देता है चीज़ को. और व्हेन इट अटैक्स विद द ऑयल एंड फैट्स, क्योंकि चिप्स में क्या होता है अल्टीमेटली विद द पोटैटो स्लाइस दैट्स कंसिस्ट ऑफ ऑयल एंड फैट्स. So when oxygen come in contact with the fats and oil, what happens? Reaction occurs and it damages the items. So that is why heavy blockage and heavy airtight medium has been created through the company. ना आप लोग सोच रहा होगा कि वो फूला हुआ तो हवा होता है, वो तो ऑक्सीजन होता है. नहीं, एक्चुअली वो that is not oxygen, that is nitrogen gas. Has been put inside that airtight medium so that the oxygen cannot get entry in it. So what is rancidity? The condition produced by an aerial oxidation means what happens whenever there is chips, or chips are there, when it has been oxidized, when the oxygens come and attack with this chip slice, what happen? It get involved with oxygen. I hope it is clear. समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं? तो what happen is that a condition produced by the aerial oxidations of fats and oil. क्योंकि ज़्यादातर खाना में ऐसा फास्ट फूड में क्या होता है, पैकेट फूड में ऑयल और फैट्स ही होता है. सो दिस फॉर ऑयल एंड फैट्स क्या होता है, ऑक्सीजन साथ मिल जाता है और क्या होता है, एक दुर्गंध का निमंत्रण होता है, इधर एक दुर्गंध का सृष्टि होता है. So in a foods marked by the unpleasant smell and taste, and this unpleasant smell and taste is referred as what? Rancidity. Is referred as rancidity. I hope the term is very very clear, everyone. So now what are the conditions? Let me give some more important discussion. So here is the last topic. It's a very interesting and very important topic. I like to draw some attention in this topic. So now it's a very important questions. How rancidity can be prevented or retarded? Retarded का मतलब होता है कैसे आप रोका सकते हो उसका प्रोसेस सड़ने से, सामान सड़ने से आप कैसे बचा सकते हो. Very first point is that rancidity can be prevented by adding antioxidant to containing fats, to food containing fat and oil. जिस सामान में फैट एंड ऑयल है उसमें अगर आप एंटीऑक्सीडेंट के सामान ऐड करोगे, सो इट इज़ मेनली यूज इन बेकरी सेकरी वट सिल्वर बेकरी आप तो जाता होगा, ब्रेड सेड में, केक कुक में यूज़ करता है, जैसे कि BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन. ये केमिकल्स का नाम है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट, ताकि ऑक्सीजन आने से बचे. जिससे केक सेक में ये सब यूज़ करता है ताकि सेक जल्दी ना सड़े, बहुत दिन तक बचे रहे और लॉस भी ना हो दुकानदार को.
This is the case. This is the thing that is very, very important. BHA and BHT. It's a very important and harmful also. The harmful chemicals, or you can say antioxidants, are used in fat and oil containing substance to reduce the density to occur in that substance in a very immediate way. I hope it is clear. समझ में आया होगा. Next क्या है कि rancidity can be prevented by packing or packaging fat and oil containing food in a N2 gas. आपको देखा होगा चिप्स कुरकुरे वो सब का पैकेट क्या होता है कि फुला हुआ मीडियम का अंदर बंद कर रखता है, पैकेट का अंदर, प्लास्टिक का मीडियम का अंदर. उसमें क्या गैस होता है? नाइट्रोजन गैस. नाइट्रोजन गैस ऐसा गैस है ताकि उसमें ऑक्सीजन को एंट्री होने से बचाए. और क्या? रैंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड. नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट इज व्हाट? रैंसिडिटी को हम थोड़ा देर तक रुका सकते हैं बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर. अगर आप फ्रिज के अंदर अगर आप कुछ हरा सब्जी या फिर जो भी हो वेजिटेबल्स, इफ़ यू कीप एंड द फ्रिज, व्हाट हैपन इज दैट उसका सड़ने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो थोड़ा धीमा हो जाता है. तो धीमा हो जाता है ताकि जल्दी ना सड़ेगा अल्टीमेटली जाकर, लेकिन नॉट इन अ फास्ट रेट, इन अ वेरी स्लो मॉड्यूल. वही है बात यहाँ पर. नेक्स्ट क्या है? रैंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन द एयर टाइट मीडियम. अगर आप कुछ सामान कुछ ऐसा कटोरे पर रखोगे जहाँ पर हवा आसानी से घुस ना पाए, इफ़ यू कीप इन सम कंटेनर विच इज वेरी एयर टाइट, सो नो एयर कैन गेट एंट्री ऑन इट. So that is also a perfect place, a perfect medium to store some good or eatable products in that case. The task is that rancidity can be retarded by storing food away from light. This was a very strong point, very important point. If you want to stop or if you want to retard the rancidity process, then if you keep in a thing away from the light, क्योंकि हम लोग बहुत सारा चीज़ धूप का सूरज का किरणों से भी सड़ जाता है. वही सामान अगर आप थोड़ा छाँव पर रखोगे, if you keep something in shadow, तो क्या होता है कि उसका जो प्रक्रिया है सड़ने का वो थोड़ा कम हो जाता है, धीमा हो जाता है. सो आई होप द चैप्टर इज एंडेड हियर. वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी डिटेल वे. आई होप मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट सो कंफर्टेबल इन इंग्लिश, सो आई लाइक टू मेक द अपकमिंग वीडियो एंड अ हिंदी मॉड्यूल, सो दैट हिंदी लैंग्वेज, सो दैट in a dual mode means so that every student can understand what I really wanted to teach here. So thank you for cooperating, and please watch the video and do comment how you really feel. If you doubt, you can ask me through it. So now NCERT questions are left, so I hope you can carry out with that questions. Thank you very much for this passion.